we completed about the unary and we have to do the binary. So we'll revise the rules for binary so that we can get the binary operator overloading program in better manner. Only existing operators can be overloaded, new operator cannot be overloaded. ओके तो जो ऑपरेटर पहले से फिक्स्ड हैं, ऑपरेटर्स के सिंबल हैं, वही ओवरलोड हो सकते हैं, और जो नहीं हो सकते ओवरलोड दैट आई ऑलरेडी गिवन यू इन द लास्ट लेक्चर. ओके the overloaded operator must have at least one operand that is of user defined. okay so इसमें क्या है, ये जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है इसमें क्या बोला है कि ये ऑपरेटर जो है overloaded operator must have one operand that is user defined. तो this is user defined. okay argument जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ये क्या है, user defined है. The general form of the operation is, so this is the same and this we will use in this binary. Return type, class name, then SRO, then operator keyword and operator symbol here and argument list. okay so we will solve. And the next rule is unary operator overloaded by means of member function will take no argument. that ये वाला स्टेटमेंट हमने कल फॉलो किया था प्रोग्राम में इन आवर लास्ट क्लास. And unary operator overloaded by means of friend function will take one argument. Same way for today's class we have to learn about the binary. Binary operator overloaded by means of member function will take one argument. okay so keep in mind अभी जो हम प्रोग्राम सॉल्व करने वाले in that if we are using this member function then we have to use one argument for binary. okay and binary operator overloaded by means of friend function is it will take two arguments. so this is a table for you to keep in mind. just draw this table so that you can get these four rules. okay so let's see. next, how to declare binary operator overloading. तो अब इसका syntax क्या है, return type, operator keyword, operator symbol and argument list. ये declaration है. okay so we will put value return type में क्या हो गया, return type suppose this is void, operator keyword, operator symbol and parameter list. जो भी होगा इसमें variables defined होगा. so these are your this is the pattern to write operator overloading for binary. okay let's see the actual aim of our program is to add two complex numbers. okay this program we are doing to add two complex numbers. okay so two complex number का format क्या रहता है, that you know that x plus iy. okay iy or jy whatever you want to mention. so this will give you imaginary, I means imaginary number. so you are adding two complex number. addition is a normal process. okay you are overloading that with a complex number. आप एक complex number का addition कर रहे हो. तो let's see how we'll do. and the type of number will be here complex. okay so we created a class complex and we are having variables as x and y. and you can see here we are not declared any access specifier, so this is private. okay and public में क्या दिया है, पहला complex. this is the name is same as that of class and we are not having any return type, even void also not there. so this is constructor and the name is default constructor. okay we are not having any parameter here, so this is default constructor. ये constructor एक start किया है. फिर complex ये भी क्या है, constructor है. you can see the name is same as that of class and it is without return type, but it is with parameter. so this is parameterized constructor. here we are passing parameter. float real and float imaginary. x equal to real and y equal to imaginary. then real value जो भी user देगा वो कहाँ पे copy होगा, x में, and imaginary value will gets copy into y. okay so these are your two constructor and this program
स्पेशली इट इज़ योर प्रैक्टिकल प्रोग्राम. ओके, इट कम्स इन प्रैक्टिकल. ये जो प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोग्राम है. सो यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो. नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स. नाउ सी, ये कौन सा सिंटैक्स है? ओवरलोडिंग सिंटैक्स. नाउ इसको कैसे लिखना है ये देखो. ये यहाँ पे क्या रहता है? रिटर्न टाइप. ओके, सो द रिटर्न टाइप ऑफ द नंबर इज कॉम्प्लेक्स. एज द नंबर इज कॉम्प्लेक्स, इसका रिटर्न टाइप भी क्या है? कॉम्प्लेक्स है. ओके, फिर ऑपरेटर, कीवर्ड, देन सिंबल एंड द वेरिएबल और पैरामीटर. पैरामीटर क्या है? एक हमने कॉम्प्लेक्स पैरामीटर लिया है. क्यों? अगर x प्लस आई वाई यू वॉन्ट टू ऐड तो इसका कहीं पे टोटल भी स्टोर करना होगा. इफ़ यू आर हैविंग टू नंबर्स देन हाउ शुड वी ऐड? ये आपको पता ही होगा, x प्लस आई वाई. ओके, इफ दिस इज योर फर्स्ट नंबर, दिस इज योर सेकेंड नंबर, तो इनका एडिशन भी कुछ तो हमें मिलेगा. ओके, सो इसको ऐड करने के लिए भी क्या चाहिए? यू नीड वन वेरिएबल. So of type complex I2, and you can see binary operators are overloaded by means of member function will take one argument. Okay, so इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही argument पास किया है, that is complex. Then one statement is there, one member function is there, that is void print, to print this imaginary or this complex numbers. Okay, and we closed our class here. Okay, तो इसमें समझ में आया. class complex, then variables are private as private is by default. If you won't declare any access specifier then also it is private. Then we created one default constructor to know you that what is default constructor. Next is parameterized constructor and operator overloading syntax, how to declare. तो हमने एक कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप में क्या दिया है? एक पैरामीटर पास किया है. मतलब जो भी हम एडिशन करेंगे वो भी क्या होगा? उसका टाइप भी कॉम्प्लेक्स होगा और कॉम्प्लेक्स वैल्यू ही वो रिटर्न करेगा. सो रिटर्न टाइप इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स. एंड वॉइड प्रिंट विल बी प्रिंटिंग स्टेटमेंट इन द फॉर्मेट ऑफ x प्लस आई वाई. ओके, सो नेक्स्ट इज, नाउ यू कैन सी, अभी यहाँ पे पहला फंक्शन क्या था हमारा? ये तो कंस्ट्रक्टर है. ओके, सो इफ यू आर हैविंग कंस्ट्रक्टर सो इट वोंट बी डिफाइंड अगेन, क्योंकि यहाँ पे वो डिफाइंड है. ओके, सो आवर नेक्स्ट थिंग इज दिस ओवरलोडिंग सिंटैक्स. सो लेट्स सी ओवरलोडिंग सिंटैक्स को कैसे लिखना है. रिटर्न टाइप एंड क्लास नेम. सो रिटर्न टाइप क्या था? कॉम्प्लेक्स. एंड क्लास नेम भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स. देन SRO, देन ऑपरेटर, कीवर्ड एंड द सिंबल प्लस, एंड वो जो वेरिएबल लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर इंट लिखा होता तो इंट a. सेम वे अगर इसका टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने कॉम्प्लेक्स C लिया है. ओके, अगर आपको ये डाउट हो रहा है यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे इंट लिखा होता है, सी हियर, यहाँ पे कैसे? यहाँ पे फ्लोट लिखा है. सेम वे अगर यहाँ पे इंटीजर होता तो ओके, तो कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो टाइप, कि हमारे नंबर्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स टाइप के ही हैं. सो सेम वे जैसे फ्लोट के लिए एक वेरिएबल लिया रियल, सेम वे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के लिए एक वेरिएबल लिया है C. ओके, कॉम्प्लेक्स के लिए एक वेरिएबल ले लिया है C. देन हाउ इट विल वर्क, लेट्स सी. फिर एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है. T मीन्स व्हाट? टेम्परेरी वेरिएबल. ओके, अभी आपको मैं यहाँ बताती हूँ. x प्लस आई वाई, this is your first. Okay, and x second value plus I y, this is your second value. Okay, so this is your temporary variable to store, जो x1 plus ये x2 का वैल्यू को स्टोर करेगा. You can see here t dot x will store your x फर्स्ट वन और ये सेकेंड वन का वैल्यू. ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स C क्रिएट हुआ है वो सेकेंड वाले वेरिएबल के लिए क्रिएट हुआ है. सो सपोज दिस इज C. ये इसका टाइप क्या है? मतलब इसमें क्या है? C से एक्सेस होगा ये, बिकॉज बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाय मीन्स ऑफ मेंबर फंक्शन विल टेक वन आर्ग्यूमेंट. ओके, सो इट विल बी फॉर सेकेंड वन. क्लियर?
सो लेट्स सी टी डॉट एक्स, दिस इज योर टेम्परेरी वेरिएबल टी जिसमें मुझे स्टोर करना है. सो टी डॉट एक्स विल बी दिस एक्स प्लस सी डॉट एक्स. ओके, ये वाला पूरा क्या है, सी. सो x plus c dot x. Okay, so this will give you temporary x. Next temporary y क्या होगा, y plus c dot y. ये c यहाँ पे आएगा, c dot y will give you temporary y. Okay, so this will actually give you t dot y. ठीक है. एंड फाइनली रिटर्न टी, मतलब ये टेम्परेरी वेरिएबल अभी इसका काम हो गया. इसको क्यों यूज किया था हमने, टू डू एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो वी हैव टू रिटर्न, ये हमें वापस करना है. सो रिटर्न टी हो गया एंड वैल्यू विल बी एक्स प्लस आई वाई, जो भी इनका टोटल आया होगा. ओके, एंड प्रिंटिंग स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न टाइप क्लास नेम SRO, द प्रिंट फंक्शन फॉर्मेट क्या है, एक्स प्लस आई वाई. दिस विल बी एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमा में है, x की वैल्यू आएगी और यहाँ पे y की वैल्यू. ओके, बैकस्लैश n से क्या होगा, हमेशा हमारा लाइन जो है वो डेटा है जो न्यू लाइन पे जाएगा. क्लियर. सो लेट्स सी द वॉइड मेन. सो वी क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स C1, C2 एंड C3. अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए थे, इन दोज प्रोग्राम्स वी क्रिएटेड ओनली 1 ऑब्जेक्ट. हियर वी आर क्रिएटिंग 3 ऑब्जेक्ट्स. ओके, ऑफ टाइप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए वी आर क्रिएटिंग 3 ऑब्जेक्ट्स. लेट्स सी कैसे होगा. C1 इक्वल टू, ओके, C1 इक्वल टू क्या है, कॉम्प्लेक्स में क्या पास किया, पैरामीटर्स. आपको याद होगा वी यूज्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसका नाम क्या था, कॉम्प्लेक्स. तो उसमें हमने वैल्यूज पास किया, वहां पे लिखा था फ्लोट, रियल एंड इमेजिनरी. So in that constructor we passed value. So float 2.5 and float 3.5. ये किसकी वैल्यू हो गई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C1, उसकी वैल्यू हो गई. ओके, सेम वे C2 कॉम्प्लेक्स में हमने 2 वैल्यूज पास की, 1.6 एंड 2.7. So this is your second complex number. So if I'll write here and see here, C1 equal to 2.5 plus I 3.5 and C2 second complex number is 1.6 plus I 2.7. And our procedure of operator overloading is C3 equal to C1 plus C2, जो actually हमें कहाँ लेके जाएगा, ये वाले कमांड पे लेके जाएगा. ओके, C3 equal to C1 plus C2. ओके, सो वो हमें यहाँ पे शिफ्ट करेगा. और when, तो अभी उसमें क्या सॉल्व होगा, व्हाट वी विल गेट, C3 इक्वल टू 4.1 प्लस I 6.2. इफ वी विल ऐड दीज 2 नंबर्स वी आर गेटिंग द सेम. ओके, सो प्रिंटिंग कैसे करना है, C out C1. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे C1 दिख रहा है, C1 इक्वल टू C1 डॉट प्रिंट. तो उसको प्रिंट फंक्शन कॉल करके x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में प्रिंट किया. नेक्स्ट बैकस्लैश n तो है, तो वो न्यू लाइन पे आ जाएगा. नेक्स्ट इज C out C2. तो यहाँ पे C out C2 मिल गया एंड वी प्रिंटेड और सेकेंड नंबर दैट इज 1.6 एंड 2.7 इन द फॉर्मेट ऑफ x प्लस आई वाई. ओके, नाउ C out C3. तो जो यहाँ पे प्रोसीजर हुआ है और C3 का नया वैल्यू जो आया है दैट इज 4.1 प्लस I 6.2. सो C3 डॉट प्रिंट. सो C3 डॉट प्रिंट में क्या आएगा, x प्लस आई वाई, जो भी वैल्यू मिला है. सो उसमें टेम्परेरी वेरिएबल रिटर्न होगा ऑफ टाइप कॉम्प्लेक्स एंड विल गेट दिस फाइनल वैल्यू एज 4.1 प्लस I 6.2. The program is simple, but here we are using, you can see the complex of a constructor, parameterized constructor and default one, and overloading syntax. सो जस्ट बी क्लियर, ये ओवरलोडिंग सिंटैक्स का अगर आपको प्रैक्टिस हो गया, सो प्रोग्राम इज वेरी सिंपल. जस्ट यूज रिटर्न टाइप हियर एंड डेटा टाइप एज कॉम्प्लेक्स ओनली. ओके, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टी एंड यहाँ पे रिटर्न टाइप भी कॉम्प्लेक्स है, कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एंड क्लास नेम इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स. सो जस्ट दीज थिंग्स कीप इन माइंड, डोंट बी कंफ्यूज्ड इन बिटवीन दिस थिंग्स. और यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स टाइप का एक वेरिएबल लिया है C, जो हमारे डेटा को, सेकेंड पार्ट ऑफ डेटा को हैंडल करेगा. ओके, सो दिस इज आवर प्रोग्राम ऑफ बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग. आई होप कि आपको ये प्रोग्राम पूरा क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू आर नॉट क्लियर प्लीज मेंशन योर क्वेरी इन
comment box or through the